آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے کہ خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا آپ لوگوں کے درمیان تاکہ ہم خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی خوبصورت گہری اور عمیق باتوں کو سیکھ سکیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور سونے سے زیادہ کیا ہے قیمتی ہے. خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی یہ صداقت ہے کہ ہماری زندگی کے تمام تر فور کارنرز جو ہیں خداوند ان سب کے بارے میں اپنے پاک کلام میں پہلے سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. اور آج جو ہمارا مضمون ہے یہ ایک انتہائی کنٹروورشل مضمون ہے. اس پر کلیسیا میں اور دنیا میں بہت ساری بحث پائی جاتی ہے, بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں, اور ان اعتراضات کی وجہ خداوند کا پاک کلام نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی کم علمی ہو سکتی ہے, اور اسے نالائکی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں کسی چیز کے بارے میں کوئی بہام نہیں پایا جاتا جسے اسے کلیئر نہ کیا گیا ہو. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے پاک اور ناپاک کھانا. کیا مضمون ہے ہمارا؟ پاک اور ناپاک کھانا, جسے ہم کلین اینڈ انکلین فوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اور آسان کرتے ہیں. ایک اور لفظ اس کے لیے بڑا استعمال ہوتا ہے, حرام یا حلال کھانا. احبار کی کتاب 11واں باب آپ لوگوں نے گھر پہ جا کے پڑھنا ہے, کیونکہ اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ہم پورے اس وقت میں نہ ڈسکس کر سکیں. یہاں پر خداوند نے اپنے بندہ مرد خدا بزرگ موسیٰ کی معرفت ہمیں یہ سکھایا کہ کون سا جانور ہم نے کھانا ہے, کون سا پرندہ ہم نے کھانا ہے, کون سی سبزی ہم نے کھانی ہے, کون سا سی فوڈ ہم نے کھانا ہے, کون سے درندے جو ہیں وہ میملز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کھا سکتے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ حرام اور حلال کھانے کا تصور جو ہے یہ مسلمز نے انٹروڈیوس کروایا ہے, کیونکہ ان کی دکانوں پر آپ بڑی کثرت سے یہ لفظ دیکھیں گے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاک اور ناپاک کا تصور, حرام اور حلال کا تصور سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل یہودی جو تھے, اس کے بعد مسیحی آئے اور اس کے بعد مسلمز. یہ تصور نہ مسلمز نے پیش کیا, نہ کرسچنز نے پیش کیا, نہ یہودیوں نے پیش کیا, بلکہ ان سے بھی بیشتر خداوند نے اپنے پاک کلام میں اپنے بندہ, سب سے پہلی قربانی آپ جانتے ہیں زمین پر کس نے گزرانی؟ بزرگ آدم کے 2 بیٹے تھے, کاہن اور ہابل. کیا نام تھا؟ کاہن اور ہابل. انہوں نے پہلی قربانی زمین پر گزرانی. ایک بھائی جو ہے وہ ایک جانور ذبح کر کے لے کر آتا ہے, اور دوسرا بھائی اپنے اناج میں سے قربانی کے طور پر خداوند کے پاس کچھ لے کر آتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بزرگ نوح کا دور آتا ہے, اور بزرگ نوح کے طوفان سے پہلے ہم لوگ اس پر ڈسکس کر چکے ہیں. خداوند نے کہا کہ تو ناپاک جانوروں کے 2 جوڑے اور پاک جانوروں کے 7 جوڑے اپنے ساتھ کشتی میں کیا کرنا؟ رکھنا. بزرگ نوح اور بزرگ موسیٰ کے درمیان سینکڑوں سال کا فرق ہے. یہ شریعت بزرگ موسیٰ کی معرفت دی گئی جو آج میں نے اور آپ نے تلاوت کی ہے, لیکن اس سے کہیں بیشتر خدا بزرگ نوح سے ہم کلام ہو چکا تھا اور اسے بتایا جا چکا تھا. لیکن یہاں پر
इस शरीयत को जो मैंने और आपने तलावत की, इसे हम रिटन लॉ कहते हैं। ये लिखी हुई शरीयत खुदावंद ने उस वक्त दी, लेकिन अपने नबियों से खुदा पहले से हम कलाम था और उन्हें बताया जा चुका था कि कौन सी चीज पाक है, कौन सी चीज नापाक है। तो इससे मुराद ये हरगिज भी नहीं है कि ये तसव्वुर मुस्लिम्स का है, क्रिश्चियंस का है, यहूदियों का है, बल्कि ये तालीमात जो है ये खुदाए सालूस की तरफ से दी गई और कलाम मुकद्दस में बुजुर्ग नूह की मार्फत और उससे भी पेशतर जो नबी मौजूद थे उन्हें इसके बारे में पहले से आगाह किया गया। क्योंकि दुनिया में 3 अदवार पाए जाते हैं। बुजुर्ग आदम से लेकर मूसा तक कोई औरल और रिटन शरीयत नहीं दी गई थी, बुजुर्ग आदम से लेकर बुजुर्ग मूसा तक, और बुजुर्ग मूसा की मार्फत शरीयत दी गई, और फिर बुजुर्ग मूसा से लेकर मलाकी तक जो है वो पुराना अहदनामा कहलाता है। कौन सा अहदनामा? पुराना अहदनामा। और फिर मत्ती से लेकर आगे मुकाशफा तक ये तीसरा एक दौर शुरू हो जाता है खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से। और फिर जब हम एक और खास चीज के बारे में देखते हैं, कुछ गलत फहमियां हम क्लियर करते चले जाते हैं। बाज़ों बात ये सोचा और समझा जाता है कि जो जानवर जिसके गले पर छुरी फेरी जाती है वो हलाल हो जाता है, और जिस पर छुरी नहीं फेरी जाती वो हराम रहता है। यह तसव्वुर भी गलत तसव्वुर है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कुछ और बयान करती है। ये गले पर छुरी फेरे जाने के लिए ज़िब्हा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम ज़बह भी कहते हैं। और ये खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया कि जो जानवर हम लोग खाएं उन्हें पहले ज़बह करें। उसकी एक खास वजह थी। उसकी खास वजह क्या थी कि जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके बदन का सारा खून जो है वो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। और अगर एक जानवर को, जैसे यहां पर या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी देख पाया जाता है, करंट लगाया जाता है या दूसरी तरफ से किसी तरह से उसे ज़बह करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें उसका खून जो है वो उसके बदन के अंदर ही जम जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता किसी तरीके से। और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ मिलकर एक हवाला निकालिएगा। पैदाइश 9 बाब की 4थी आयत। पैदाइश 9 बाब की 4थी आयत देखिएगा। वहां पर खुदावंद ने इस खून के बारे में मुझे और आपको क्या सिखाया। निकाल लिया है आप लोगों ने? पैदाइश 9 बाब की 4थी आयत में खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है वापिस पढ़ूंगा, गौर से सुने। मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। उसकी क्या वजह है? खून के अंदर किसी भी जानदार की जो है वो जान पाई जाती है, और खुदावंद ने खून को खाने से हमें मना किया, जिसकी वजह से हमें ये कहा गया कि उसे ज़बह किया जाए ताकि जानवर का सारा खून जो है वो उसके जिस्म से खारिज हो जाए। और अगर वो खारिज नहीं होता तो जैसे मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया, वो जिस्म के अंदर जानवर के रह जाता है और वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। जो आयात यहां पर तलावत की गई है वहां पर 4 तरह के जानवरों का जिक्र पाया गया है, और इनमें से मुस्लिम लोगों के नजदीक जो है वो 2 जानवर उनके नजदीक हलाल हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस उसके बारे में कुछ और कहती है। यहां पर पहले नंबर पर ऊंट का जिक्र किया गया है खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में, अहबार 11वें बाब में। यहां पर लिखा है कि तुम ऊंट को भी ना खाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक है। नापाक जानवर कहा गया ऊंट को। जबकि आप देखते हैं बकरा ईद के ऊपर कुर्बानियों के तौर पर गैर कौमें जो है वो ऊंट की कुर्बानी भी गुजरानती हैं, और खास तौर पर मुझे पंजाब का तो आइडिया नहीं है, लेकिन कराची के अंदर जो निहारी बनती है
उसके अंदर जो बोटी डलती है वो ऊंट के गोश्त की होती है। मैंने और आपने देखना है खुदावंद ने किसी वजह से मना किया, यहां पर उसकी दो बुनियादी वजह बताई गई। खुदावंद ने कहा कि तुम वो जानवर खा सकते हो जिनके पांव चिरे हुए हो, अलग अलग हो, और वो साथ में क्या करते हो, जुगाली करते हो। वो जानवर तुम्हारे लिए पाक है। क्या लिखा है? जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम उन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव जो है वो अलग, वो जुगाली करता है, एक कंडीशन पर पूरा आता है, लेकिन उसके पांव चिरे हुए नहीं है। खुदावंद ने मना किया कि तुम ऊंट को यानी कैमल को तुम जो है वो ना खाना। उसके बाद क्या लिखा है? सो वो तुम्हारे लिए क्या है? नापाक है। आगे बढ़े। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं। सुफान, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने देखा होगा, बुजुर्गों का तो मुझे नहीं पता। सुफान एक छोटा सा जानवर है, जैसे कि मेरे मोबाइल में मैं तस्वीर भी बनाकर लाया था, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो उसकी वीडियो चल रही है। ये एक, जैसे आपने चूहा देखा, चूहे को थोड़ा सा अगर आप बड़ा करेंगे तो वो सुफान बन जाएगा, बिल्कुल उसकी शेप चूहे की तरह की है, लेकिन उसको भी खाने से खुदावंद ने जो है वो हमें मना किया। और उसके बाद इलावा आगे क्या लिखा है? सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं है। ये खरगोश जो है, मुस्लिम लोग जो हैं वो खरगोश को भी खाते हैं, उनके नजदीक ये भी एक हलाल जानवर है, ऊंट भी एक हलाल जानवर है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक ऊंट भी नापाक जानवर है और खरगोश भी नापाक जानवर है, और हमें इसे खाने से मना किया गया। आगे बढ़ेंगे। और वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सुअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, सुअर के पांव चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहां पर उसका गोश्त जो है वो कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। जब मैंने इसके ऊपर मेडिकली रिसर्च की तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि सुअर का गोश्त जो है वो अगर एक खास तरह से ना पकाया जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है, और उससे स्किन की प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं, और इवन कैंसर की बीमारी भी जो है वो उससे जन्म लेती है, सेरदो से, इस सुअर से। और उसकी वजह यही थी कि अगर खुदावंद ने मुझे और आपको इतनी सारी चीजें खाने के लिए कहा तो यकीनन उसके पीछे खुदा का कोई मकसद और मतलब होगा, और अगर खुदा ने हमें किसी चीज से मना किया तो यकीनन खुदावंद हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा बेहतर समझता है कि यह चीज हमारे लिए फिजिकली तौर पर नुकसानदेह हो सकती है। और सुअर के बारे में एक और बाइबल मुकद्दस में आयत लिखी है, लिखा है कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैह की तरफ लौटता है, बिल्कुल उस तरह सूरनी को अगर आप मिलाते हैं, धुलाते हैं, तो भी वो दलदल और गंदगी की तरफ ही लौटती है, क्योंकि उसकी खसलत जो है वो गंदगी है। एक डॉक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने अपने उस इंटरव्यू में बताया कि जो जानवर हम लोग खाते हैं उनकी खसलत जो है, उनके एटीट्यूड्स जो हैं, वो किसी ना किसी तरीके हमारे जिस्म के अंदर सरायत करते हैं। और यहां पर खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में खास तौर पर अभी हमने इसको खाने के बारे में स्केल क्या मुकर्रर किया है? हमने स्केल ये मुकर्रर किया है, चूंकि गोरे जो हैं वो बड़े समझदार हैं, वो बगैर सोचे समझे कोई चीज नहीं खाते, वो खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं।
गोरे और भी बहुत सारे काम करते हैं जिनकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस नहीं करती। और आज आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं कि जो गोरे हमने रोल मॉडल के तौर पर बनाए हुए हैं, उनमें से 80% गोरे तो खुदा को भी नहीं मानते। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बहुत वो खुदा को ही नहीं मानते। खुदा का पाक कलाम तो बड़ी दूर की बात है। मेरा और आपका फोकस, मेरा और आपका रोल मॉडल जो है वो खुदावंद का पाक कलाम होना चाहिए, ना तो कोई गोरा ना काला। खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। और दूसरी बात, एक बड़ी कीमती बात करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं सुअर खाता हूं तो आप कहेंगे भाई साहब खाते हैं तो हम भी खा सकते हैं। नहीं, अगर एक गुनाह मैं कर रहा हूं तो वो जायज नहीं हो जाएगा। वो गुनाह अपनी जगह पर मौजूद है। बुजुर्ग मूसा की तरफ देखें, उसने एक मिस्री आदमी को कत्ल कर दिया। क्या कत्ल बाइबल मुकद्दस में जायज हो गया? मर्दे खुदा था। कौम बनी इस्राइल से कहा गया गोया तू कौम बनी इस्राइल के लिए खुदा है। बुजुर्ग मूसा से कहा गया, उसने कत्ल किया, कत्ल जायज नहीं हुआ। खुदावंद ने कहा जो तलवार से कत्ल करते हैं तलवार से कत्ल किए जाएंगे। बुजुर्ग दाऊद से गलती हुई, बुजुर्ग सुलेमान से गलती हुई, बुजुर्ग समसून से गलती हुई। नबी थे, पैगंबर थे, बड़े बड़े खुदा के करीबी और हर दिल अजीज नबी थे, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की वो बाइबल मुकद्दस जायज करार नहीं देती, इसलिए कि वो नबियों ने कर दी है तो जायज हो गई। नहीं, जो गुनाह बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, चाहे वो कोई बिशप हो, फादर हो, पास्टर हो या कोई भी शख्स हो, वो भी करे, गुनाह अपनी जगह पर अपना मुकाम बरकरार रखता है और वो किसी के भी करने और ना करने से उसके मर्तबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुदावंद ने कहा है कि वो नापाक है तो वो चाहे कोई भी हमें कहे वो अपनी जगह पर नापाक है। देखिए खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। यशायाह नबी का सहीफा जी 66वां बाब उसकी 17वीं आयत खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 66वां बाब उसकी 17वीं आयत निकाल लिया है। उसकी 65 की 4 देखिए। यशायाह नबी का सहीफा 65वां बाब 4 जी। जो कब्रों में बैठे और पोशीदा जगहों में रात काटते और शोर का गोश्त खाते हैं और जिनके बर्तनों में नफरत की चीजों का शोरबा मौजूद है, वो कहते हैं तो अलग ही खड़ा रहे, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूँ। ये मेरी नाक में धुएं की मानद और दिन भर जलने वाली आग की तरह है। आमीन। अभी 66 में की 70 में भी साथ में पढ़ दीजिएगा। 66 चैप्टर नंबर 66 वर्स 17। वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक को साफ करते हैं, जो शोर का गोश्त और मकरूह चीजें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो बहम फना हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? जो सुअर का गोश्त खाते, मकरूह चीजें खाते, चूहे खाते, खुदावंद फरमाता है कि वो बाहम क्या हो जाएंगे? ये मैंने नहीं लिखा भाई, मुझ पे नहीं कोई फतवा जारी कर दीजिएगा। ये खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है। असल में अभी फजल की कलीसिया के अंदर, आज मौजूदा कलीसिया के अंदर जो लोग इस खुराक को खाना चाहते हैं वो इसके लिए बहुत सारे जवाब रखते हैं। मैं हमेशा कभी कभी एक शेर सुनाता हूं कि ढूंढ लेते हैं सभी अपने गुनाहों का जवाब, जैसे कि मुजरिम नहीं खल्के खुदा में कोई भी। जिसने चर्च पीनी है वो कहता है ये कोई
नशा थोड़ी है, जमीन से उगता है। जिसने शराब पीनी है वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मुआवजा मैं कब किया था। हर एक शख्स अपने लिए एक जवाब रखता है गुनाह को करने का। यही वजह है कि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम मुझे और आपको यह सिखाता है कि आज वो लोग जो जवाब पेश करते हैं वो 3 हवालाजात पर मबनी है, उनको हमने बड़ी केयरफुली देखना है। और ये एक बड़ा टिपिकल सा मजमून था, लेकिन बहैसियत बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म और आपका खादम होते हुए मेरा ये फर्ज था कि मैं आपको बाइबल मुकद्दस की तालीमात आप तक पहुंचाऊं। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में नया नामों में से मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील निकालिएगा, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत तलावत कीजिएगा। जो भी निकाल ले पढ़ने में रहनुमाई करेंगे और गौर से इस पर नजर कीजिएगा कि जो हवालाजात वो पेश करते हैं इसको जायज करार देने के लिए, वो वाकई ही इसके बारे में क्या कहते हैं। 15वें बाब की 11वीं आयत। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। आमीन। सुना है आपने, ये पहला हवाला है जो वो लोग जो ये सुअर का गोश्त खाते हैं या खाना चाहते हैं, पहला हवाला ये पेश करते हैं कि जो चीज मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो दिल से बाहर निकलती है वो आदमी को नापाक करती है। भाई बिन्यामीन आपने रहनुमाई करनी है। इसी 15वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़े। कभी भी एक बात में आप पहले सुने, पाक और मुकद्दस कलाम की किसी भी एक आयत को उठाकर अपनी मर्जी से कहीं भी फिट करने की कभी कोशिश ना करें। उसके ऊपर की आयत पढ़े, उसके नीचे की आयत पढ़े, पूरे पैसेज को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस टॉपिक से मुताल्लिक खुदावंद फरमा रहे थे। अदरवाइज एक शख्स ने क्या किया, बाइबल मुकद्दस की किताब के ऊपर और नीचे हाथ रखकर कहने लगा बेटा ये पढ़ो, क्या लिखा है। वहां लिखा है दुआ मत करो। कहता है बाइबल में लिखा है दुआ मत करो, उसने ऊपर हाथ रख दिया, वहां लिखा है दुआ मत करो जब तुम नापाकी की हालत में हो, वो उसने हटा दिया, कह रहा दुआ मत करो, लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में अपना। और ये काम कौन करता है? शैतान। जाकिर नाइक भी यही काम करता है। बाइबल मुकद्दस की एक आयत बीच में से अपनी मर्जी से उठाई, कहीं भी फिट कर दी, उसका ना सियाको सबाक, ना आगे का पता, ना पीछे का पता। पहले बाब 15वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़े, बात क्या हो रही है। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धो रहे। आमीन। यहां पर फकीर और फरीसी खुदावंद के पास आए हैं और उससे आकर कहते हैं कि तेरे रसूल, तेरे शागिर्द जो हैं वो बुजुर्गों की रवायत पर अमल नहीं करते। और वो रवायत क्या थी कि बगैर हाथ धोए जो है ये खाना खाना शुरू कर देते हैं, और ये बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक ठीक नहीं। ये पहली आयत है जहां से ये डिस्कशन शुरू हो रही है, और जब वो नीचे जा रही है तो वहां से उन्होंने अपनी एक आयत उठाई और यहां पर फिट कर दी कि खुदावंद ने कहा जो कुछ तुम खाते हो उससे नापाक नहीं होते। अभी इसी बात की नीचे जाकर 20वीं आयत पढ़े। जब इस पैसेज का इख्तिताम हो रहा है तो खुदावंद क्या फरमा रहे हैं। 15वें बाब की 20वीं आयत। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन। सुना है आपने, ऊपर क्या बात हो रही है, नीचे क्या बात हो रही है, और किसी भी जगह पर खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ये जायज है या पाक हो चुका है। खुदावंद ने कहा वो बुरी बातें हैं, झूठ, फरेब, इस किस्म की जो सारी बातें हमारे दिल से निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती हैं। और नीचे जाकर खुदावंद ने फरमाया, जब ये पैसेज खत्म हो रहा है तो वहां पर लिखा है बगैर हाथ धोए आदमी को खाना जो है वो नापाक नहीं करता। ये किसी और टॉपिक पर बात हो रही है। यहां पाक और नापाक चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही। दूसरा हवाला जो वो पेश करते हैं वो देखिएगा मेरे साथ मिलकर,
इमाल 10वें बाब की 12वीं आयत। जी, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, इमाल की किताब 10वां बाब उसकी 12वीं आयत, जिसमें जमीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं, और उसे एक आवाज आई कि आए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। आमीन। यहां पर देखिए, बुजुर्ग पतरस जो है वो गलूदगी की हालत में है। एक रोया उन्हें दिखाई देती है। रोया में और ख्वाब में फर्क है, ये बात याद रखें। चले यहां पर आगे बताता चलूं। ख्वाब उसे कहते हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं और खुदावंद आपसे बात करता है तो वो ख्वाब कहलाता है। रोया उसे कहते हैं जब आप गलूदगी की हालत में होते हैं, जाग भी रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, और आपको बाहर जो बातें हो रही होती हैं वो भी सुनाई दे रही होती हैं। वो गलूदगी की हालत में जो आपसे खुदा हम कलाम होता है उसे रोया कहते हैं। यहां पर बुजुर्ग पतरस को जो है वो भूख लगी हुई है, खाना तैयार हो रहा है, और उसे जो है वो गलूदगी की हालत में आसमान से एक चादर उतरती हुई दिखाई दी, और उस पर हर तरह के कीड़े मकोड़े, पाक और नापाक सारे जानवर जो है वो उसके ऊपर मौजूद है। और खुदावंद ने पतरस से कहा कि उठ कर इन्हें क्या कर, खा। और बुजुर्ग पतरस ने क्या कहा, खुदावंद, मैंने कभी कोई हराम और नापाक चीज नहीं खाई। लिखा है दूसरी मर्तबा फिर ये आवाज आई, उठ और खा पी। उसने कहा, मैंने कभी कोई हराम और नापाक चीज नहीं खाई। खुदावंद ने कहा, जिसे मैंने पाक ठहराया है उसे तू कौन है जो नापाक कहे। ये वो दूसरा हवाला है जो वो लोग जो इस चीज को जायज और पाक करार देना चाहते हैं पेश करते हैं, जबकि इस आयत का मतलब और महफूम जो है वो कुछ और है। वो 10वें बाब की 28वीं आयत पढ़िएगा। वहां पर क्या लिखा है? इमाल की किताब 10वें बाब की 28वीं आयत में जाकर इस बात की सदाकत जो है वो खुलती है कि ये खुदावंद असल में क्या कह रहे थे, कहना चाह रहे थे। जी, उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके हाथ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूं। आमीन। यहां पर गौर करें, खुदावंद ने बुजुर्ग पतरस को भेजना था करनीलियस के पास, जो कि गैर कौम का शख्स था। यहूदियों का ये तस्वुर था, ये अकीदा और ईमान था कि सिर्फ खुदा जो है वो यहूदियों का है, और दूसरी तमाम कौमों के लोगों को वो नजिस और नापाक समझते थे, और उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन चूंकि खुदा उसे गैर कौम के पास भेजना चाह रहा है, और यहूदियों के नजदीक गैर कौम नजिस और नापाक है, और खुदावंद ने उससे कहा कि उठकर ये खा और पी। वो कहता है कि मैंने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। उसने कहा, जिसे मैंने पाक ठहराया है तू कौन है उसे नापाक कहने वाला। और फिर आगे चलकर जब इसका इख्तिताम होता है तो बुजुर्ग पतरस जब करनीलियस के घर पर जाते हैं तो फिर कहते हैं कि खुदा ने मुझे रोया में बता दिया कि मैं तुझे गैर कौमों के पास भेजने वाला हूं, और तुम जानते हो कि यहूदियों के नजदीक जो है वो गैर कौमें नजिस और नापाक है, लेकिन खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू उन्हें नजिस और नापाक ना कह, बल्कि इंजील की खुशखबरी का पैगाम उनके पास लेकर जा। और अगर आप इस पैसेज को घर पर जाकर पढ़े तो बुजुर्ग पतरस ने उनमें से एक भी चीज नहीं खाई। वो चादर बिल्कुल उस मकसद के बयान के फौरन बाद आसमान पर उठा ली गई, और खुदा ये बताना चाह रहा था कि अभी खुदा जो है वो सिर्फ यहूदियों का नहीं है, बल्कि वो किसका है? गैर कौमों का, जिसे तुम नापाक
और हराम समझते हो, अब खुदा की खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचेगा और उसे तुम अपने तक महदूद ना रखो। आगे बढ़ते हुए आखिरी आयत जो वो पेश करते हैं वो कौन सी है? मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतस की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। जी, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतस की कलीसिया के नाम, दूसरा तीमुथियुस के बाद है ये, पहले बाब की 15वीं आयत। जी, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं। आमीन। यहां पर सुने ये तीसरी आयत जो वो पेश करते हैं, किसी भी हराम या नापाक चीज को पाक करने के लिए वो ये बयान करते हैं कि पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं और नापाक लोगों के लिए सब चीजें नापाक हैं। अगर इस आयत का मतलब जैसे वो बयान करना चाहते हैं वैसे ही समझा जाए तो मेरे और आपके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो जाएगी। और जो लोग सुअर वगैरह का गोश्त खाते हैं, खरगोश का गोश्त खाते हैं, ऊंट का गोश्त खाते हैं, सफान का गोश्त खाते हैं, उनसे हमें यह पूछना पड़ेगा कि आप कुत्ते का गोश्त क्यों नहीं खाते? आप बिल्ली का गोश्त क्यों नहीं खाते? आप सांप क्यों नहीं खाते? आप गधे का गोश्त क्यों नहीं खाते? आप घोड़े का गोश्त क्यों नहीं खाते? आप छिपकली क्यों नहीं खाते? आप मगरमच्छ क्यों नहीं खाते? जब आपके लिए हर एक चीज पाक है तो फिर सिर्फ सुअर ही क्यों? फिर तो सब चीजें पाक हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है? उन्हें भी खाए पिए मौज करे, लेकिन नहीं। यहां पर इसे कहते हैं हाइपोक्रेसी। उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज है? सॉरी, मेरे जहन में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कहना कुछ और करना कुछ, कंट्राडिक्शन पाया जाता है, कौल और फेल में तजाद पाया जाता है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमेशा ये बात याद रखें कि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम कभी इबहाम अपने अंदर नहीं रखता। अगर कम अक्ली की वजह से, कम इल्मी की वजह से, और मेरे घर पर बैठकर एक शख्स ने ये बात कह दी, यही बात, और मैं सोच में पड़ गया कि ये हालेलुया के नारे भी बहुत मारते हैं और कदूस कदूस की आवाजें भी इनकी दुआओं में बड़ी आती हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि हम सच्चाइयों को जानें, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को समझें। और इसी वजह से आज बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं, ये इसी वजह से है ताकि मैं उन तमाम पासबानों तक ये पाक कलाम को भेजूंगा, ताकि वो सुन लें कि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम जिस चीज को नापाक और हराम कहता है, मैं और आप उससे पाक कैसे कह सकते हैं। और अगर हमने कुछ खाना है तो बेशुमार बरकत खुदावंद ने हमारे लिए, भेड़ बकरियां, गाय बैल, हर एक चीज हमारे लिए पाक और जायज है, जिसे खुदावंद ने पाक ठहराया है। हम जी भरकर उसे खा सकते हैं। लेकिन जिस चीज को खुदावंद ने नापाक किया है, किसी इंसान के खाने से, किसी इंसान के कहने से वो चीज कभी पाक नहीं होगी। और अगर कोई इस तरह करता है तो उसके बारे में पाक कलाम फरमाता है कि जो कोई खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में अमेजिश करता है, अमेजिश का मतलब है उसमें से कुछ घटाता है, उसमें से कुछ बढ़ा देता है, तो उस पर इस किताब में लिखी हुई सारी आफतें नाज़िल होंगी। मुकाशफा आखिरी बाब की आखिरी आयत में लिखा है। हमें खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर, अभी इस पर बहुत सारी बातें मैं और कर सकता था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। इस पर और बहुत सारी बातें की जा सकती थी, लेकिन वक्त को मुख्तसर करते हुए
इस टॉपिक पर जितना बताया गया है ये सारी सदाकतें खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नीचे रहती हैं उनको हम पहले भी नहीं खाते, लेकिन हमारे लिए जानना इंतहाई जरूरी है। लिहाजा खुदावंद मुझे और आप मछलियों के बारे में आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, मछली वो आप खा सकती हैं जिसके ऊपर कांटे हो। कौन सी मछली? जिसके ऊपर कांटे हो, जिसके पर हो। जिस समुद्री जानवर के ऊपर कांटे नहीं होते उसे खाने की इजाजत नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। और भी बेशुमार जानवर इसके अंदर पाए जाते हैं जिनके बारे में मना भी किया गया है, वाज़ेह तौर पर बताया गया है, लेकिन खुदावंद ने अपने पाक कलाम में हमें हर एक चीज का बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन।